तो मतलब फ्यूचर में क्या कभी कॉमेडी या रोमांटिक फिल्में देखते आएंगे आपको कि क्या है? क्योंकि हमने मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि आप एक्शन फिल्में आपको देखना पसंद नहीं है और आप एक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो क्या है? बट एक मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई आपके लिए. फॉर मी, यू नो व्हाट वाज डिफिकल्ट इन एक्शन रियली इज, पहले भाग में भी यही था कि एक कॉमन मैन की स्टोरी है. फिर मैंने फारूक से पूछा कॉमन मैन कौन होता है, सब तो कॉमन ही है. सो ही मेंट समबडी हु इज नॉट फॉट एवर इन हिज लाइफ, बट मजबूरन लड़ना पड़ा. हम जब सेट पे थे, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट, आई रिमेंबर मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती थी कि जब भी कोई अटैक करता था मैं नेचुरली ये करता था या ये करता था, बट कॉमन मैन तो नहीं करेगा. सो मुझे सीखना पड़ा जब कुछ गिरता है ना. So for me to be untrained was the most difficult thing, and I promise you I had more fun. I learned so much about imbalance. बहुत कुछ सीखा मैंने एक non-trained, as a common non-trained martial artist play करके. मुझे कभी देश के लिए बुलाते हैं, कभी बीवी भाग जाती है, कभी बच्ची गायब हो जाती है, अब उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना. So now the people I'm meeting are the ones who like little light-hearted things. So I'm enjoying reading, enjoying working on things which are comical. I enjoy that part. Yeah, I'm Hemant Sangani, Damkham Media. This question is for Shivalika. Shivalika, in this film particularly, there are emotion moments in it. Your child gets kidnapped. Now, Vidyut is an out-and-out action person. Now, he is acting in a family way also. So those moments, whether, and I don't know how Farooq managed to shoot them, but they appear very, very appealing on the screen as such. So how did you go through the whole process as such? And with you, especially you, your action is inbuilt in you. You just can't sit still, yani. But you managed it somehow, yani, getting in the family way. So this answer has to come from both of you. And then Farooq, how did he execute these sequences as such? Shivalika. So when something like this happens, I think it's a very natural emotion that anybody would feel. It's something that I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, what I could research. I have sat with Farooq sir and I have actually gone through each and every scene on what this character would do. Uh, Honestly, Nargis is again somebody who does not show a lot of emotion, but in this film, you'll see a lot more. So the way you mentioned that when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this. So they will be able to relate to this. I think they'll easily be able to relate to what my character has felt and what I have emoted. We always fear for our loved ones, no? हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब किसी अपने के बारे में फेयर करते हैं या रोज़ फिक्र करते हैं. तो ये चीज़ें तो बड़ी इंसानी हैं और नॉर्मल हैं. तो जैसा मैंने पहले कहा था कि दोनों विद्युत और शिवालिका को कहीं अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें टोटली पड़ी हैं इस कैरेक्टर के लिए. बहुत सारा अंदर भी खोजना पड़ा है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म नहीं है कि आप सेट पे आ जाएं और आप सीन कर दें. आपको उसकी तह के अंदर जाना पड़ेगा उसको बखूबी निभाने के लिए, ताकि ऑडियंस को पसंद आए. विद्युत के लिए भी सेम चीज़. So there were actually days that honestly, I've not even spoken to family, that I was so much into character. When we have met on set, we have been so much in our character that we've actually not spoken on set. जब सेट पे सीन में इन दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये बात नहीं सुनती करते. नहीं थी, मैं बात कर रहा था. सर फिल्मों में एक्शन करने के अलावा मैं रोड पे भी बहुत लड़ता था, पहले से आदत है. कोई दोस्त को कोई कुछ बोल दे तो बस अटैक. For me to get into this character, to fight for somebody I love was not really so difficult. थोड़ा it's a bit arduous because you have to get into it. फिर उसी में रहना पड़ता है सारे दिन, गम में रहना का आपको. You have to train yourself. वो मुश्किल पार्ट है, but to fight for somebody, it comes naturally to me. Somebody I love,
यहाँ पे तो बीवी और बच्चे का सवाल था. We'll take two more Hi questions, guys, right? आखिरी के दो Vidyut सवाल. Center जी. here. Guys, we love the trailer. My question is to Farooq sir. Of course, part 1 में हमें विद्युत बहुत अच्छे लगे, but it's just a general instinct पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया for chapter 2? नहीं सुनिए नहीं मेरा जवाब अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, कड़क बहुत लग रहा है बढ़िया, ना? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया है ना? हाँ जी. 1 भी पसंद आया ना? जी. अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका. देखिए ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं. अच्छा है, यकीन रखना उसको. मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज़्यादा देखता हूँ शायद मैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूँ, आई नो हु इज़ एज अ पर्सन. तो मुझे और बहुत सारे पहलू इनमें दिखते हैं. वही सारा इमोशन यहाँ दिखता है. ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन. यू जस्ट कांट सी इट बिकॉज यू सी द इमेज दैट यू सी ऑन स्क्रीन, बट आई नो द पर्सन बिहाइंड दैट इमेज, सो देन आई कैन टेक अ लॉट मोर फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी टू इंटरप्रेट इट इन टू द फिल्म. और सर म्यूजिक की बात की जाए तो जान बन गए वॉज अ वेरी हिट नंबर फ्रॉम द चैप्टर 1. तो चैप्टर 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एल्बम? जी जी, ये अच्छा सवाल था आपका. तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत बहुत स्पेशल है हम सब के लिए. खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के गाने आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा. मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में हमारे साथ क्रू में मेरे बहुत ही चहेते, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए हैं, जिन्होंने जान बन गए क्रिएट किया. और मिथुन के साथ साथ जान बन गए की जान, वो आवाज़ विशाल मिश्रा की, वो भी साथ में बैठे हुए हैं. तो इस बार एक्चुअली आई फील के ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद, कबीर सिंह के म्यूज़िक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के लिए. और आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है म्यूज़िक. मिथुन ने ऑफ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोग को एक सरप्राइज़ झलक देंगे. विशाल ने भी 2 गाने बनाए हैं. एक और गाना है शब्बीर अहमद, जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का. बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूज़िक, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट. Wow. One last question and आगे बढ़ेंगे. जी मैम. Hi, Vidyut. Hi, Shama Bhagat. Vidyut, you have been an action star. Everyone knows that. But how long does it take for you to come out of the emotional scenes? Do you take the character home or do you switch on and switch off easily? हाँ, इनको लगता है मैं घर लेके जाता हूँ. मैं घर जाता हूँ और अपनी बेटी को ढूंढता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है. मैम एक प्रोसेस है ये. मैं जब इंटरव्यू सुनता था एक्टर्स के और मैं सुनता था वो क्या बोलते हैं, समझ सब आती थी, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट इट, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. जब मैं वहाँ होता हूँ तो बहुत गंभीर हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत मज़े आते हैं. वी नेवर यूज्ड टू स्पीक टू ईच अदर ऑन द सेट आउट ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी इज़ इन कैरेक्टर, आई एम इन कैरेक्टर. बट द मोमेंट इट गॉट ओवर वी वर लाइक हेलो क्या प्लान है कल का, कुछ नहीं, शूटिंग है. सो मैम थोड़ा अलग है मेरा प्रोसेस. व्हेन आई एम देयर, आई एम 100% देयर. They are both very disciplined. Nobody uses their phones on set, etc. So the discipline on set is very डिसिप्लिन good. का क्या लेना देना है भाई. ऐसे थोड़ी रूल मत बनाओ ऐसे. नहीं नहीं है, distraction से बचना. Thank you so much, ladies and gentlemen. And आइए. कुमार कोई जी, बात नहीं. आपसे एक पूछना था. आपने कहा था कि मतलब खुदा हाफिज चैप्टर 3 आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल 3 आएगा, डेफिनेट आएगा, 100% आएगा. उसकी जो झलक है आपको ये पिक्चर जब देखेंगे इसके लास्ट सीन में आपको मिल जाएगी. Yes, you have to watch the film for that. तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर 3 क्या होगा. अच्छा मुझे बोला गया था कुछ कोरोना के लिए भी बोलना है, सेफ्टी के लिए. कौन बोलेगा? आप ही बोलोगे. नहीं मुझसे तो अलग बात है ना सर. मैं ये बोलना चाहता हूँ क्या सर, लाइक प्लीज फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल्स, रियली आई मीन इट. आई नो पीपल हु आर गेटिंग अनवेल, ये बताया गया है, बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ मेरे कई दोस्त हैं उनको थोड़ी सी खांसी हो जाती है, उनको लगता है कोरोना है, उस वहम में मत पड़ना प्लीज. थोड़ी बारिशें भी आने वाली हैं, हो सकता है कॉफ हो जाए यार, बट बी केयरफुल. जी आशीष जी.
स्टार हो, साउथ में भी आप काम कर रहे थे, हिंदी फिल्म में भी काम कर रहे थे, इस जो ये बाउंड्री खत्म हुई है उसको कैसे देखते हो? और आपकी ये जो फिल्म है, मुझे लगता है ये पैन इंडिया फिल्म है, ये दूसरी भाषाओं में भी आप रिलीज करोगे। कुमार सर, आप दोनों बताना चाहोगे? फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है चीज़ों की, और अपने पहले भी प्लान नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जब पार्ट 3 बनेगी वो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेज में होगी। बंदे फाइट 3 में फंसे हुए हैं। सवाल ये था आपका? क्या बात कर रहे हो? मैं काम करके भूल जाता हूँ इसे। इट्स द सेम, आई कांट सी द डिफरेंस। मैं एक फौजी का बच्चा हूँ। जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग थी तो चेन्नई रेजिमेंट थी वहाँ पे। मेरे लिए सब सेम है, हिंदी फिल्म, एवरीथिंग इज द सेम। आई कांट डिफरेंशिएट। थैंक यू सो मच। एंड जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है सर, मैं बता दूं आप लोगों को क्रेडिट जाता है, जो सिक्योरिटी टीम है ना हमारी यहाँ पे, ये आज पठानी में है। और सर एकदम ऐसे सब ऐसे स्लोमो में चल रहे हैं सर। एवरीबडी इज लाइक अंदर नहीं जाने का। सो वो मतलब ये इम्पैक्ट है। अभी आप ये कर रहे हो, आगे पता नहीं क्या करोगे जब खुदा हाफिज 3 आएगी सर। मैंने इनिशिएट करवाया है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, फारूक सर, विथ योर काइंड परमिशन, आपने म्यूजिक की बात करी एंड we have Mithun sir. Yes, so I would love to invite our treasure trove, the supremely talented, gifted, blessed, highly spiritual, somebody I regard and love a lot, Mithun on stage, please. A big round of applause, ladies and gentlemen. Mithun sir is here.